Hello students, very good morning. Today's topic if else statement. In my previous lecture where I taught about if else statement, and if else statement is what, as we know that this is the decision making statement where we have only two paths. हमारे पास केवल two path है. If the condition is a logical expression that evaluate true. अगर हमारा condition true होता है then the if block of code will run, and when our condition will false then else block of code runs. Okay, if with condition, if condition will true then the if block of code will run, and if condition false then else block of code runs. Okay, so this is a little recap about your if else statement. Students, if you are really curious to know about this, then you may visit my playlist. Okay, now let us start and try to understand about if else statement. Okay, if and else statement is what? This is also the conditional control structure used to check multiple condition. Okay, ऐसा नहीं है कि सिचुएशन हमारे पास हर समय सेम हो, कि वी हैव ओनली टू पाथ, हमारे पास केवल दो ही पाथ हो और चूज करना रहे या तो यस या नो. ओके, या ट्रू या फॉल्स. मे बी इन द सिचुएशनल वी हैव अ मल्टीपल कंडीशन, हमारे पास मल्टीपल पाथ हो, मल्टीपल कंडीशन हो. सो इन दैट केस वी यूज इफ एल्स स्टेटमेंट. Okay, it allows the program to choose one block of code from many options. The if condition is checked first. If it evaluates true, it's block the code of execute, and the remaining condition are skip. बाकी के जो सारे कंडीशन होंगे वो क्या हो जाएंगे, skip हो जाएंगे. If the first condition is false, अगर हमारा पहला कंडीशन ही false हो, जैसे हम लोग यूज करेंगे if condition, अगर कंडीशन हमारा ट्रू होता है then the if block of code will execute. Otherwise again we have the multiple condition, so here again we write condition according to programmer requirement. Now if condition will false then elif block of code will execute. If elif block of code कंडीशन इज फॉल्स, अगर हमारा इलिफ का कंडीशन भी फॉल्स होता है देन द इल्स ब्लॉक ऑफ कोड विल एग्जीक्यूट. ओके, सो देयर कैन बी अ मल्टीपल इलिफ स्टेटमेंट. हो सकता है कि हमारे पास मल्टीपल इलिफ स्टेटमेंट हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट. यू मे यूज इफ कंडीशन एंड इलिफ मल्टीपल इलिफ स्टेटमेंट हो सकता है, and at last we use else statement. Okay, this structure make program more readable, efficient when handling several choice. Notice over that this is the example. जैसे हमने यहाँ पे डिसाइड किया marks, this is the variable, and यहाँ हमने डायरेक्टली असाइन किया वैल्यू फॉर दिस वेरिएबल. ओके, दिस इज द इफ विथ कंडीशन. कंडीशन व्हेन द कंडीशन विल ट्रू, अगर हमारा ये कंडीशन ट्रू होता है देन इफ ब्लॉक ऑफ कोड विल एग्जीक्यूट, तब हमारा प्रिंट करेगा ग्रेड ए. अदरवाइज दिस विल स्किप फॉर द नेक्स्ट कंडीशन. ये क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को इग्नोर करते हुए नेक्स्ट कंडीशन को रीड करेगा. नाउ इफ कंडीशन अगर हमारा ट्रू होता है then this block of code will execute, otherwise this will skip to the else case. Okay, now in the else part this print like this. Okay, so syntax हमारा क्या होगा, there is not need to use only a single elif condition. You may use a multiple elif condition like if with condition. Okay, if condition will true then the if block of code will execute, otherwise elif. Again here I use condition. Okay, now the next elif block of code, if condition will true then the elif block of code will execute. Again we can use condition. If elif condition will false then
our cursor, our control skip for the next if condition. अगेन चेक द कंडीशन, फिर से ये कंडीशन को चेक करेगा. अगर हमारा कंडीशन ट्रू होता है देन दिस पार्ट विल बी एग्जीक्यूट, तब हमारा ये पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा. एंड एट लास्ट अगर हमारा कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होता देन एट लास्ट द इल्स पार्ट विल एग्जीक्यूट. ओके, सो यू मे राइट n टाइम्स. आप इलिफ स्टेटमेंट को n टाइम्स यूज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, n टाइम्स विथ कंडीशन, एंड एट लास्ट वी यूज else. Okay, so now let us start and try to understand after using a simple program. Suppose I want to enter any number equal to int. चलिए जूम कर देती हूँ. एंड इनपुट enter number. Now press enter. Any number as the marks. चलिए मैं इसे चेंज कर देती हूँ. अब हम यहाँ if कीवर्ड का यूज करेंगे विथ कंडीशन कि अगर हमारा गिवन मार्क्स will greater than 90, अगर हमारा गिवन मार्क्स ग्रेटर देन 90 हो देन प्रिंट करना चाहिए grade A. Okay, now press enter. Now again here I use the next condition. So सिंपल हियर आई राइट इलिफ कीवर्ड जो कि हमारा प्री डिफाइंड कीवर्ड है. द सेम मार्क्स अगर हमारा ग्रेटर देन 80 हो, सो इन दैट केस इट शुड प्रिंट क्या करना चाहिए, GRADE, ग्रेड हमारा प्रिंट होना चाहिए ग्रेड बी. ओके, नाउ द नेक्स्ट अगेन वी कैन यूज द नेक्स्ट इलिफ कंडीशन. सो वी कैन यूज द n टाइम्स according to requirement. You may use 20, then in this case print हो जाना चाहिए हमारा ग्रेड C. and at last the else statement, we can write the else statement. लास्ट केस प्रिंट हो जाना चाहिए हमारा the grade D. Okay, now save this. Now execute this. इंटर नंबर इंटर करते हैं. तो चलिए 60. नाउ प्रेस इंटर. एग्जीक्यूट किया ग्रेड डी. ओके, ये हमारे इल्स पार्ट को एग्जीक्यूट किया सारे कंडीशन को फॉल्स बताते हुए जैसे कि हमने इंटर किया था. चलिए नाउ एग्जीक्यूट दिस. यस, इंटर नंबर जैसा कि हमने इंटर किया. सपोज अभी मैंने इंटर किया था 70. ओके, 60. देन ग्रेड डी. आप देख सकते हो इफ मार्क्स हमने इंटर किया कितना 70. सो 70 इज ग्रेटर देन 90. नो, द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स. हमारा जो पहला कंडीशन था वो फॉल्स हुआ. तो ये इफ ब्लॉक ऑफ कोड को क्या किया, स्टेटमेंट को इग्नोर करते हुए स्किप कर गया और फिर आया ये कहाँ, इलिफ के पास. नाउ अगेन चेक द कंडीशन. ये फिर से कंडीशन को चेक किया कि क्या जो हमारे गिवन मार्क्स है वो ग्रेटर देन 80 है. 70 इज ग्रेटर देन 80. नो, कंडीशन अगेन फॉल्स. हमारा जो कंडीशन था वो फिर से फॉल्स हुआ. तो ये बॉडी पार्ट को एग्जीक्यूट ना करते हुए ये फिर से नेक्स्ट कंडीशन को चेक किया. अगेन 70 इज ग्रेटर देन 70. नो, दिस पार्ट विल नॉट बी एग्जीक्यूट. ये भी हमारा जो पार्ट है वो हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा. सो एट लास्ट द इल्स ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट. ओके, सो जैसे चलिए इसी में समझते हैं एक और एग्जांपल इफ इलिफ कंडीशन को लेते हुए. सो सिंपल, हमने इंटर करवाया है मार्क्स, या फिर चलिए मैं इंटर करवा देती हूँ नंबर, कोई भी नंबर
यूजर्स के द्वारा, और इंटर करने के बाद मुझे चाहिए एक फंक्शन मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ ABS. ओके, ABS दैट हेल्प्स यू टू मेक अ नेगेटिव नंबर एज द पॉजिटिव, इसको काउंट करेगा. ओके, सो num, now here the condition is what? If num is greater than 10, अगर हमारा num जो है वो लेस देन 10 हो, लेस देन 10 हो, तब प्रिंट करना चाहिए कि ये हमारा जो है वो 1 डिजिट नंबर है. ओके, 1 डिजिट. ओके, इलिफ, इलिफ के केस में मैं फिर से कन्वर्ट कर रही हूँ. अगर हमारा नंबर जो है वो लेस देन 100 आता है, तब इसको प्रिंट कर देना चाहिए कि यहाँ पर 2 डिजिट नंबर यूज किया गया है. ओके, नाउ अगेन the number, when the number is लेस देन 1000, इन दैट केस प्रिंट होना चाहिए कि जो भी हमने नंबर दिया वो क्या है, हमारा 3 डिजिट नंबर है. सो सिंपल 3 डिजिट. ओके, एंड इल्स केस में प्रिंट कर देना चाहिए मोर देन 3. ओके, नाउ सेव दिस, नाउ एग्जीक्यूट दिस. इंटर नंबर हमने इंटर किया 9. सिंपल, हियर द फर्स्ट कंडीशन विल ट्रू, यहाँ हमारा सबसे पहला कंडीशन ही ट्रू हो गया, तो एग्जीक्यूट किया हमारा इफ ब्लॉक ऑफ कोड. ओके, सो दिस प्रिंट 1 डिजिट. बट एज सुन एज आई चेंज द नंबर, जैसे ही हम नंबर को चेंज करते हैं, इंटर द नंबर, इंटर द नंबर लाइक, चलिए हम यहाँ पे दे देते हैं 99. नाउ प्रेस इंटर. नाउ द सेकंड ब्लॉक ऑफ कोड विल एग्जीक्यूट बिकॉज हियर द सेकंड कंडीशन विल ट्रू. जैसे ही हमारा सेकंड कंडीशन ट्रू होगा, दिस विल एग्जीक्यूट द सेकंड ब्लॉक ऑफ कोड. Now the next, again execute this. Now enter, here I type any 3 digit value. Now press enter, so this print a 3 digit. ठीक है, otherwise this print more than 3. ओके, तो आप देखे होंगे कि ये हमारा इफ कंडीशन, इफ, इलिफ एंड इल्स केस किस तरह से काम करता है. अच्छा, आप ध्यान दे रहे होंगे कि मुझे बार बार एग्जीक्यूट करवाना पड़ रहा है, तो सिंपल वी कैन ऑल्सो यूज हियर द लूप, फॉर लूप. हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू print this statement, you may write down. So okay, thank you. In my next video I would try to make you understand about a loop. So thank you for watching this. If you realize the video is really helpful, then please subscribe my channel, and don't forget to hit the bell button to update it with my content. Thank you for watching this.